Hello friends, hope you guys are doing good. Today we are going to talk about IFRS 15, which is revenue from contract with customers. So I think we all know it is one of the very important standards issued by the International Accounting Standard Board (IASB) very recently. So before we move to talk about the IFRS 15 standard, I think first we need to understand why it is being introduced. So ऐसा नहीं है कि पहले रेवेन्यू के ऊपर कोई स्टैंडर्ड नहीं था हमारे पास, स्टैंडर्ड थे हमारे पास पहले भी, लाइक IAS 11 was there, IAS 18 was there, in India AS 9 we all know revenue recognition was there. बट जो वो स्टैंडर्ड थे हमारे पुराने, उसके अंदर कुछ खामियां थी, कुछ कमियां थी, वो सब्जेक्टिव थे, सब्जेक्टिव इन द सेंस कि वो स्टैंडर्ड जो थे वो खाली हमें बताते थे कि हमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कैसे करना है, लेकिन जो इंडस्ट्री में एक्सपर्ट्स थे, कॉर्पोरेट्स थे, IASB के मेंबर्स थे, दे सिट टुगेदर एंड आइडेंटिफाइड सम लूपहोल्स इन द करंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड दे केम टू अ कंक्लूजन दैट बिफोर रिकॉग्नाइजिंग द रेवेन्यू, फर्स्ट the entity or the corporate need to focus on some other points as well, so that they can correctly recognize the revenue. And वो points कौन से थे, हम जो आगे हमारी वीडियो है इसमें हम आपको एक्सप्लेन बताएंगे कि कहाँ पे it was required. So friends, before we move on to understand the 5-step model of IFRS 15, so अगर मैं नर्सरी में बात करूँ IFRS 15 मेरा क्या बताता है, तो IFRS the standard says to recognize the revenue, to depict the transfer of goods and services to the customer, for which entity expect to receive the consideration. तो वही बातें मैंने यहाँ लिखी हैं कि recognition of revenue according to the terms and conditions which are mentioned in the contract with the customers for transfer of goods and services, and for which the entity is entitled to receive the consideration. तो इन सभी चीजों में एक बात इंपॉर्टेंट निकल के आती है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट अगर होगा तो ही हम बाकी ये जो बातें हैं वो होंगी हमारी। तो IFRS 15 का जो फर्स्ट स्टेप मॉडल है वो यही कहता है हमसे कि आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, कि सबसे पहले आप जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आइडेंटिफाई करो, उसके अंदर क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या क्या उसके अंदर ऑब्लिगेशंस हैं फॉर द एंटिटी, एंड क्या क्या एंटिटी के पास राइट्स हैं, तो वो चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो फ्रेंड्स, this is the first step and very important step to identify. So few points are there which you need to take care of when checking out any contract which is entered with the customer. Number first, there must be a commitment to perform by both parties. It should be not like कि any party can cancel the contract at any point of time. No, it should not be like that. दोनों पार्टी की अपनी कमिटमेंट होनी चाहिए in order to perform the terms and conditions which are stipulated in the contract. Number 2, rights and obligations are identified. जो एंटिटी के राइट्स हैं और जो कस्टमर के राइट्स हैं, एंड इन द सेम वे जो एंटिटी की ऑब्लिगेशंस हैं, तो कस्टमर की ऑब्लिगेशन है, एंटिटी की ऑब्लिगेशन होगी टू ट्रांसफर द गुड्स एंड कस्टमर की ऑब्लिगेशन होगी टू मेक द पेमेंट टू द एंटिटी, वो उसके अंदर हमारी आइडेंटिफाई होनी चाहिए। एंड Number 3, again, entitlement of consideration. An entity is entitled to receive the consideration when the entity transfer the promised goods and services to the customer. And number 4, very important one is commercial substance. This is very important. Why it is important? I tell you one example. Let's say company X entered into a contract with company Y to grant the loan of, let's say, 15 crores. And as per the terms and conditions of the contract, company Y is not required to make any interest payment. So we can say it is an interest-free loan. So tell me whether in that case, can company X book any revenue or any interest income? No. तो कोई भी बिजनेस मुनाफा करने के लिए, बेनिफिट करने के लिए रन होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट मिला वही इसके एम्बिट में आएगा IFRS 15 के में, जिसमें
बात करी जाएगी कि कॉमर्शियल सब्सटेंस हो, कुछ प्रॉफिट की बात हो फ्रॉम द कंपनीज पर्सपेक्टिव। ओके गाइस, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वंस अगेन, ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट मेरा हमेशा रिटर्न में ही होगा कि भाई जो कस्टमर है उसके लॉयर्स सीए बैठेंगे साथ में, जो एंटिटी है उसके सीएफओ बैठेंगे साथ में, तब कॉन्ट्रैक्ट एंटर होगा। और वो जो हम सोचते हैं जनरली, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिटन, इट कैन बी ओरल एंड इट कैन बी इम्प्लाइड। So friends, so far we have studied the first step, which is identification of the contract. अब हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर मैं एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो एंटिटी की क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं टू फुलफिल दोज टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो उन्हीं को हम बोलते हैं ऑब्लिगेशन। और आईएफआरएस में उसका नाम दिया गया है हमें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो परफॉर्मेंस obligation is nothing but a promise to transfer the distinct goods and services to the customer, so that once the entity transfer the goods and services, the entity is entitled to receive the consideration in respect of those goods and services. ठीक है जी, बात आती है समझ में यहाँ तक। अब बात आती है कि अच्छा ठीक है, डेफिनेशन हमें पता है, लेकिन हम कॉन्ट्रैक्ट में उसको आइडेंटिफाई करेंगे कैसे, राइट? तो दो तरीके इसको आइडेंटिफाई करने के। पहला ये है कि या तो वो मेंशन होगा हमारे एग्रीमेंट के अंदर भी, जैसे से फॉर एग्जांपल मैंने कस्टमर को गुड्स सेल करे और गुड्स की कंडीशन थी कि इतनी क्वालिटी होनी चाहिए और ये उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। तो मैंने इंस्पेक्शन करा के, थर्ड पार्टी से इंस्पेक्शन करा के उसका सर्टिफिकेट डाल के मैंने साथ में मैंने गुड्स डिस्पैच करे कस्टमर को मैंने दे दिया, तो उससे उसके पास प्रूफ हो गया कि हाँ गुड्स जो है वो क्वालिटी सर्टिफाइड है। तो ऑलरेडी ये जो टर्म्स थी, जो प्रॉमिस थी, ऑलरेडी मेंशन था एग्रीमेंट के अंदर, तो एक तरीका तो ये है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमेशा हर कंडीशन, हर प्रॉमिस हमारा एग्रीमेंट के अंदर स्पेसिफाई नहीं होता है, तो उसमें हम लेके चलते हैं कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिस। इसका एग्जांपल बहुत सिंपल एग्जांपल है, जैसे हमारा मैं बात करता हूँ एप्पल की, राइट? तो एप्पल जो है वो क्या करता है कि अगर उसका आईपैड या आईफोन हमारा खराब हो जाए तो वो सीधा उसको रिप्लेस कर देता है। तो ये उसका प्रॉमिस है एप्पल का कि अगर कोई भी चैलेंजेस आते हैं आपके आईफोन के अंदर तो हम आपको पूरा का पूरा आईफोन आपको रिप्लेस करके ब्रांड न्यू आईफोन आपको देंगे। लेकिन वो कहीं एग्रीमेंट में नहीं लिखा रहता, लेकिन वो कस्टमर उनकी बिजनेस प्रैक्टिस उन्होंने अपनी ऐसी बनाई है, तो वो भी एक तरह से उनकी क्या होगी, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगी। ओके जी, ठीक है। यहाँ पे अब बात आती है कि ऑब्लिगेशन मैंने यहाँ पे देख ली अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि ये मेरी ऑब्लिगेशन है। लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेके आपसे बात करता हूं। देखो, सो हमने आइडेंटिफाई तो कर ली कि हमारी ऑब्लिगेशन कौन कौन सी है। अब उन ऑब्लिगेशन को क्या हम एक सिंगल ऑब्लिगेशन माने या डिफरेंट ऑब्लिगेशन माने, ये हम कैसे चेक करेंगे? तो आईएफआरएस में क्लियरली मेंशन है कि भाई इसको चेक करने के लिए आपको टू स्टेप मॉडल फॉलो करना है। टू स्टेप मॉडल का मतलब है कि पहले ये फॉलो करना है, पहले इसको चेक करना है फर्स्ट स्टेप को, फिर उसके बाद हमें सेकंड स्टेप पे आना है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा बोलता है कि दोज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन या दोज प्रॉमिस्ड गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है फिर हमें चेक करना है सेकंड क्या, कि वेदर दे आर डिस्टिंक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कि भाई पहले तो हमें चेक करना है कि क्या वो कैपेबल हैं डिस्टिंक्ट होने के। अच्छा, मैंने कहा हाँ जी है। क्या वो उस कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्ड में क्या वो डिस्टिंक्ट है या नहीं। मैं फिर अपनी बात को एक एग्जांपल से आपके सामने रखता हूँ। लेट्स से एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि मैंने एक इक्विपमेंट बनाया, ठीक है, मैंने इक्विपमेंट बनाया। इक्विपमेंट की जो इंस्टॉलेशन है वो मैंने कस्टमर की साइड पे जाके ही मैं कर सकता हूँ। लेट्स से कोई काफी हैवी मशीन है मेरी, मोल्ड्स एंड डाइस की जो मशीन्स होती हैं हमारी, जो फैक्ट्रीज में लगती हैं, उसके असेंबली में अपने एंटिटी अपने प्रीमाइसेस में नहीं कर सकती। उसके लिए जो भी पार्ट्स हैं उसके असेंबली उसकी वहीं पे होगी इंस्टॉलेशन कस्टमर प्रीमाइसेस पे। अच्छा ठीक है। और तीसरी सर्विस मैं अपने कस्टमर को दे रहा हूँ उसकी मेंटेनेंस की, राइट। अब जो उसकी इंस्टॉलेशन की सर्विस है, वो जो उसकी मशीन है वो बहुत टेलर मेड है। ऐसा नहीं है कि कोई भी थर्ड पर्सन आके, कोई भी थर्ड कंपनी आके उसकी इंस्टॉलेशन कर सकती है। वो इक्विपमेंट मैंने मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उसकी जो इंस्टॉलेशन का जो
प्रोसीजर है वो मुझे पता है कि कौन कौन से इक्विपमेंट कहाँ पे कैसे कैसे स्टेप वाइज लगेंगे, ताकि इक्विपमेंट फंक्शनल हो सके, इक्विपमेंट ऑपरेट कर सके क्लाइंट अपना। ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट था। तो इसके अंदर मेरी तीन बातें हैं। नंबर 1, एक तो मैं इसको इक्विपमेंट दे रहा हूँ। नंबर 2, दूसरा मैं इसको इंस्टॉल करके दूंगा, इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन सर्विस में दूंगा। एंड नंबर 3 आर माई मेंटेनेंस सर्विसेज, कि मैं इसको ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years और लेट्स से 5 years द कंपनी विल प्रोवाइड द मेंटेनेंस सर्विसेज टू द कस्टमर। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ इक्विपमेंट की, कि क्या मैं इनको टेस्ट करेंगे हम कि क्या इक्विपमेंट कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट है। जी हाँ, बिल्कुल है। इक्विपमेंट मेरा एग्रीमेंट के अंदर मेंशन है कि इक्विपमेंट मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, प्रॉमिस है मेरा, मैं आपको डिलीवर करूंगा, बिल्कुल है। क्या वो डिस्टिंक्ट है इन कंटेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? भाई मेरा जो इक्विपमेंट मैं सप्लाई कर रहा हूँ आपको मैन्युफैक्चर करके, वो है तो कैपेबल, लेकिन वो इंडिविजुअल कैपेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं खाली इक्विपमेंट नहीं आपको सेल करूंगा, मैं आपको इक्विपमेंट के साथ साथ आपको इंस्टॉलेशन सर्विस भी दूंगा, तो वो मेरी सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगी, राइट। सेम वे में इंस्टॉलेशन सर्विसेज क्या कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट है? जी हाँ, बिल्कुल है। लेकिन क्या डिस्टिंक्ट है इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इक्विपमेंट सप्लाई प्लस इंस्टॉलेशन वो दोनों आपस में इंटररिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, वो मुझे एक सेट में करके देनी है, तो वो मेरी एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, ना कि डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तीसरी चीज थी हमारी मेंटेनेंस सर्विसेज। तो मेंटेनेंस सर्विसेज के लिए कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आपको हमें से लेनी है। मेंटेनेंस सर्विसेज उसकी मैं भी दूंगा, या अगर कस्टमर चाहे किसी थर्ड पार्टी को भी रिक्रूट कर सकता है फॉर अवेलिंग द मेंटेनेंस सर्विसेज। तो क्या वो कैपेबल है डिस्टिंक्ट? यस इट इज। एंड वेदर इट इज डिस्टिंक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? यस इट इज डिस्टिंक्ट। सो जो हमारा एग्जांपल था, इसके अंदर हमारे जो मेरे को परफॉर्मेंस देनी है, जो उसको प्रॉमिस करना है मेरे को कंप्लीट, वो है तो 3, इक्विपमेंट, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है हमारी अकॉर्डिंग टू IFRS, अकॉर्डिंग टू आवर स्टैंडर्ड, वो है 2। 1 इज इक्विपमेंट प्लस इंस्टॉलेशन एंड नंबर 2 इज माई मेंटेनेंस सर्विस। ठीक है जी, ओके। ये तो बात होगी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब लेट्स से कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया, मैं काम कर रहा हूँ। अब कुछ टाइम बाद वही कस्टमर आता है मेरे पास और वो कहता है कि सर मुझे एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज भी आपसे अवेल करनी है, एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज भी मेरे को आपसे अवेल करने हैं। तो क्या इसमें इसके अंदर आएगा वो, इस वाले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर? वो नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर आपको ध्यान होगा जो हमने स्टेप 1 में बताया था, उसमें बताया था हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें कहा था कि अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप चेंज होता है ड्यू टू एडिशन ऑफ गुड्स, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होगा, इट विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज कि अगर बाद में कस्टमर आता है एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए तो हम इसी के अंदर इंक्लूड कर देंगे, नहीं, वो हमारा स्टेप 1 के अंदर फॉलो होगा और उसको हम इधर डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली क्या करते हैं कंपनियां, टू अवॉइड this lengthy calculation, practically companies try to merge those two contract in a one contract so that उनकी जो year-end पे उनकी अकाउंटिंग है वो थोड़ी इजी हो जाए। ठीक है जी, अब इसमें हम आगे की बात करते हैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के अंदर ही। लेट्स से मैं एक और एग्जांपल से अपनी बात रखूंगा। मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट करा, जैसे लेट्स से मेरा सब्सक्रिप्शन का बिजनेस है, ठीक है, मैं मैगजीन्स पब्लिश करता हूँ डिफरेंट सेक्टर्स पे, लाइक हेल्थ केयर सेक्टर हो गया मेरा, लाइफ साइंसेज सेक्टर हो गया, स्पोर्ट्स का हो गया। तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, उन्होंने मेरे से हेल्थ केयर सेक्टर का जो सब्सक्रिप्शन था वो मेरे से ले लिया, लेट्स से $12,000 और 1 साल के लिए ले लिया। हमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया, हमने उसको एक्सेस दे दी, जो भी रिपोर्ट्स होती है हमारी। उसके बाद मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि इफ यू वांट टू अवेल एनी एडिशनल रिपोर्ट्स, तो उसके लिए हम आपको लेट्स से 40% का डिस्काउंट दे देंगे ऑन योर फ्यूचर सब्सक्रिप्शन। तो मैंने उसको उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक उसको ऑप्शन दे दिया कि भाई फ्यूचर में अगर आप हमसे और सब्सक्रिप्शन बिजनेस हमसे लोगे तो हम आपको जो नेक्स्ट बिजनेस करोगे आप हमसे, उस पर हम आपको 40% का डिस्काउंट देंगे।
अच्छा जी ठीक है। अभी लॉकडाउन होने लगा, लॉकडाउन में सब वो अपनी फैमिली के साथ घर पे था, तो उसके जो बच्चे थे उन्होंने कहा कि भाई हमें स्पोर्ट्स के बारे में कुछ मैगजीन्स पढ़नी है। तो वो हमारे पास आया, उसने कहा कि भाई सर ऐसा है, मैंने तो अपना उस रेफरेंस सेक्टर की ले रखी है, लेकिन मेरे को स्पोर्ट्स सेक्टर की भी चाहिए, मैं मैगजीन्स का सब्सक्रिप्शन। हमने कहा अच्छा जी बहुत अच्छी बात है। अब मेरी इसमें क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है कि जो हमने 12,000 उससे पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए करा, क्या वो, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या वो $12,000 का कॉन्ट्रैक्ट खाली उसके पहले वाले सब्सक्रिप्शन बिजनेस के लिए था? द आंसर इज नो। व्हाई नो? क्योंकि इफ यू सी उस 12,000 के अंदर मैंने एक प्रॉमिस तो उसको ये करा कि आप इस हेल्थ केयर सेक्टर का आप सब्सक्रिप्शन ले लो, लेकिन मैंने साथ में मैंने उसको एक राइट भी ग्रांट करा, टू ऑप्शन दिया मैंने उसको, टू ऑप्शन टू अवेल एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? तो मैंने उसको एक राइट ग्रांट करा कि फ्यूचर में होगा। तो जो $12,000 में उसे चार्ज करूंगा वो खाली मेरा हेल्थ केयर बिजनेस के लिए नहीं है, उसके अंदर 2 कंपोनेंट होंगे मेरे, ठीक है? अब उसकी बात आती है कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कंपनीज जो होती है वो प्रैक्टिकली कैलकुलेट कैसे करती है इस चीज को। तो वो देखती है कि उनका पास्ट ट्रेंड क्या रहा है, कि कितने परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स आए हैं जो एडिशनल ऑप्शन जो है हमारा उसको अवेल करते हैं। लेट्स से 4% या लेट्स से 5% फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेरा कॉन्ट्रैक्ट था 12,000 का, मैंने देखा कि जो मेरी कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिस है मैं उसमें 10% डिस्काउंट तो कस्टमर को वैसे भी देता हूँ, मैं 10% डिस्काउंट तो वैसे भी देता हूँ, तो मैं उस पर्टिकुलर मेडिकल प्रैक्टिशनर को एडिशनल डिस्काउंट कितने का दे रहा हूँ? मैंने बोला था कॉन्ट्रैक्ट में कि 40% दूंगा सर आपको डिस्काउंट, 10% मैं नॉर्मल देता हूँ, तो इंक्रीमेंटल डिस्काउंट मैंने कितना दिया उसको? 40 - 10 30%। अच्छा 12,000 का मेरा कॉन्ट्रैक्ट, उसका 30% कम्स टू $3,600। ओके, अब उसके कितने परसेंट चांस है? लेट्स से उसके 5% चांस है, तो 3,600 इंटू 5% कम्स टू $180, राइट? तो जो $180 है उस 12,000 के अंदर, वो $180 मेरा उस ऑप्शन के लिए है जो कस्टमर फ्यूचर में एक्सरसाइज कर सकता है, आज की तारीख में वो नहीं, उसने अभी नहीं करा। तो जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि भाई पहले के जो एएस थे वो सब्जेक्टिव थे, वो इसलिए थे, वो क्या करते थे कि 12 का जो 12,000 आया उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 12,000 डिवाइड बाय 12, $1,000 एवरी मंथ हम रेवेन्यू बुक करते थे। लेकिन उसके अंदर जो $180 का जो अमाउंट है, लेट्स से तो मेरा एक ही बिजनेस है, जैसे मेरा ये एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन मान के चलो अगर ऐसे मेरे 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे तो 180 का मल्टीपल करके वो अमाउंट जो है उस मटेरियल अमाउंट बन जाएगी मेरी। तो उस मटेरियल अमाउंट से मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओवरसीड होती थी। जो हमारा IFRS का या किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेस होता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू हमारा नहीं निकल के आ रहा था। तो इसलिए IFRS ने बोला कि भाई ये 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है आपकी, एक तो आपकी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए है जो आप उसको सब्सक्रिप्शन दे रहे हो हेल्थ केयर का, और दूसरा आप उसको ऑप्शन दे रहे हो ना फ्यूचर में एडिशन अगर वो आता है अपना एक्सरसाइज करने के लिए, राइट? तो एक उसके लिए, तो जो $180 है उसको आप रिकॉग्नाइज अभी मत करो, उसको आप क्या करोगे? उसको आप डेफर करोगे। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? उसकी एंट्री बनेगी मेरी कॉन्ट्रैक्ट एसेट अकाउंट डेबिट, ये जिसको हम अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू टू डेफर्ड रेवेन्यू, और डेफर्ड रेवेन्यू में आएगा मेरा $180। तो अभी तक हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में समझा कि उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, और एक हमने बात करी कि ऑप्शन टू एक्सरसाइज द एडिशनल राइट्स विच वी टुवर्ड द कस्टमर, ठीक है? तो अभी हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के अंदर देखा कि उसकी डेफिनेशन क्या है, IFRS में उसको आइडेंटिफाई करने के क्या तरीके हैं हमारे पास, और एक हमने समझा कि ऑप्शन फॉर द एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो हम इसको बोलते हैं राइट ग्रांट करने के लिए, ठीक है? अब इसमें एक बात और आती है, वो है मेरी सब कॉन्ट्रैक्टिंग। सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या है कि भाई मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट करा, कॉन्ट्रैक्टर ने आगे किसी और को फर्दर सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या उसमें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन चेंज होगी? इस बात को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि होगी या नहीं होगी। लेट्स से मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैं सीए हूँ, मेरी जॉब लगी, मैंने कहा भाई मेरे को एक अपना फ्लैट लेना है। अच्छा बड़ी अच्छी बात है,
मैंने नोएडा में रहेजा ग्रुप से कांटेक्ट करा और मैंने कहा कि सर मेरे को एक 3 BHK का फ्लैट चाहिए। उसने कहा ठीक है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया मिस्टर रहेजा के साथ कि भाई ये मेरे को फुली फर्निश्ड फ्लैट देंगे बना के इस अमाउंट में इतना स्क्वायर फीट का। बाकी चीज जो थी वो अलग थी, लेकिन जो ऑब्लिगेशन थी, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फ्रॉम मिस्टर रहेजा पॉइंट ऑफ व्यू वाज टू प्रोवाइड मी द फुली फर्निश्ड फ्लैट। अच्छा ठीक है। अब मिस्टर रहेजा हैं, वो आते हैं भैया मर्सिडीज गाड़ी से आते हैं, ऑडी से जाते हैं। अब फुली फर्निश्ड जो फ्लैट होगा मेरा, उसके अंदर मेरे को इलेक्ट्रिसिटी का भी काम होगा, उसके अंदर मेरे को प्लम्बिंग का भी काम होगा, राइट। आप सोच के देखो, क्या वो काम मिस्टर रहेजा खुद करेंगे कि ऑडी गाड़ी से उतर गए, हाथ में पुर्जे अपने औजार लेकर अपना काम करने उनमें नहीं करेंगे। तो उन्होंने आगे थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर दिया कि भाई ये फ्लैट है इस लोकेशन पे, आप यहाँ पे अपना इलेक्ट्रिशियन का और प्लम्बिंग का काम करके दो। उन्होंने करके दे दिया और जो हमारी जो एग्रीमेंट में जो डेट थी, उस डेट में मेरे को पोजीशन मिल गई मेरे फ्लैट की। तो क्या मेरी क्या मिस्टर रहेजा की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में कोई चेंज आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ था और मुझे परवाह नहीं थी कि वो आगे काम किससे करवाएं। मेरे को क्या मिलना था एज अ कस्टमर, मेरे को फुली फर्निश्ड फ्लैट मिलना था, जो कि मुझे मिला। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग के केस में हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में चेंज नहीं होता है, इट रिमेन्स द सेम। ठीक है। तो अगर मैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की समरी फटाफट अगर मैं बात करता हूं तो क्या चीज है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज द प्रॉमिस टू ट्रांसफर द डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे मैं डिस्टिंक्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर गुड्स एंड सर्विसेज अलग अलग होंगे तभी मेरी जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो भी मेरी अलग अलग होगी। अगर एक ही गुड है तो उसकी क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में दो या तीन होगी, उसकी एक होगी। तो डिस्टिंक्ट गुड डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। फिर हमने देखा इसमें कि या तो भाई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो मेंशन होगा या फिर जो कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिस है उसके थ्रू होगा। उसको आईएफआरएस बोलते हैं, हमें चेक कैसे करना है कि क्या वो अलग अलग हैं, हम उसको एक में क्लब करें तो बोलते हैं कि कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट। अगर हाँ, फिर हमें सेकंड साइड चेक करना है कि क्या डिस्टिंक्ट है इन कंटेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फिर हमने बात करी इसमें एडिशनल राइट ग्रांट जो हम कस्टमर को करते हैं, और लास्ट में हमने बात करी सब कॉन्ट्रैक्ट। तो नाउ अभी हमने स्टेप 1 कॉन्ट्रैक्ट हमने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद हमने इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं वो भी आइडेंटिफाई कर ली। अब हम जाते हैं अपने थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए? आपको सोच के देखो कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, मेरे को पता लगे कि मेरे को क्या क्या प्रॉमिस करके देना है। अब मैं प्रॉमिस किसी को दे रहा हूँ, उसका फुलफिल करके मेरे को मैं फ्री में तो दूंगा नहीं, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था स्टेप 1 में कि उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होना चाहिए, कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए, तो मेरे को कुछ बदले में पैसा मिलेगा। तो उसको बोलते हैं आईएफआरएस में ट्रांजैक्शन प्राइस। अब हमें वो डिफाइन करना है। तो आइए वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। सो अकॉर्डिंग टू आईएफआरएस उसकी डेफिनेशन क्या है कि इट इज द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन व्हिच द एंटिटी एक्सपेक्ट टू बी एंटाइटल्ड इन एक्सचेंज ऑफ द प्रॉमिस्ड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। कि वो कंसिडरेशन, अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन जो एंटिटी एक्सपेक्ट कर रही है, एक्सपेक्ट टू एंटाइटल इन एक्सचेंज किसके बदले में, प्रॉमिस्ड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, जनरली ये बहुत आसान होता है आइडेंटिफाई करने, क्योंकि हर बिजनेस, चाहे मैं हूं, आप हो, रिलायंस है, टाटा है, सबके सब ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर यही क्लियरली मेंशन नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट में तो बड़ी समस्या वाली बात आ जाएगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी इनको, सभी को दिक्कत हो जाएगी कि ट्रांजैक्शन प्राइस हमें डिफाइन कैसे करेंगे, क्योंकि वही मेरा क्या होगा, आगे चल के रेवेन्यू का मेरा बेस बनेगा, जिसके वजह से मैं अपनी एंट्रीज बुक करूंगा, बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्रीज चलेंगी, फिर मेरा पेडल बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी, ईपीएस, पी रेशो सब उस पर डिपेंड करता है। तो ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आइडेंटिफाई होना क्लियर। अब एएस हमें बोलता है, केवल क्या होता है कि जो कंसिडरेशन है वो किसी फैक्टर्स पे भी डिटरमाइन होती है। फैक्टर पे डिटरमाइन कैसे होती है, लेट्स से वेरिएबल कंसिडरेशन, कि मेरे को परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। लेट्स से मैंने एजेंसी ले रखी है, लेट्स से मैंने जेके टायर की एजेंसी ले रखी है, और जेके टायर ने मुझसे कहा कि सर अगर आप मेरे 10 लाख टायर इस फाइनेंशियल ईयर में आप मेरे सेल कर दोगे तो मैं आपको लेट्स से 1 लाख का परफॉर्मेंस बोनस मैं आपको दूंगा। मैंने कहा अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात है। तो उसको बोलते हैं वेरिएबल कंसिडरेशन। दूसरा फैक्टर इसमें आता है हमारा क्या,
प्राइस कंसेशन क्या कि अगर कोई कस्टमर मेरे से बल्क में क्वांटिटी खरीदता है, जैसे बड़ा सिंपल एग्जांपल है, अगर आप किराने की स्टोर पे जाते हो, आप उससे 2 किलो चीनी लेते हो, वो आपको क्या पता 80 रुपए की दे, लेकिन अगर आप उससे 50 किलो चीनी लोगे, शुगर लोगे, तो वो क्या पता 40 रुपीज की बजाय आपको 38 या 39 की लगा के देगा। तो वो प्राइस कंसेशन जिसको हम बोलते हैं वो भी हो सकता है। जब एक बार क्या होता है कि कैश ना देके वो आपको कुछ कैश के बदले में कुछ और दे दे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके बारे में IFRS हमें बात करते हैं कि हाउ वी हैव टू डील विद दो सिनेरियोज। अब उसके लिए वो बोलता है कि अगेन आपके पास दो तरीके हैं इसको चेक करने के लिए। नंबर 1 इज मोस्ट लाइकली अप्रोच एंड नंबर 2 इज एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्रोच। मोस्ट लाइकली अप्रोच क्या होती है? बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होती है, या आई कैन से वेरी होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच व्हाई आई एम सेइंग कि इसमें हम कहते हैं कि भाई मेरा जो पैसा है वो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा। लेट्स से मैंने अभी बात करी परफॉर्मेंस बोनस की, तो मैं बड़ा खुश हो गया कि हाँ भाई मैं टायर जो है मैं सेल कर ही दूंगा, मेरे को 1 लाख मिलेगा ही मिलेगा, और मैंने उसको रेवेन्यू बुक कर लिया। नॉट रेवेन्यू बट मैं लेट्स से मैंने एसेट बुक कर ली। लेकिन ये ऐसा बोलता है कि भाई अभी इतने खुश मत हो, आपके पास दूसरा तरीका भी है। आप एक्सपेक्टेड वैल्यू देखो, आप देखो कि उसके चांस कितने हैं कि 1 लाख मिलने के कितने % चांस हैं। लेट्स से अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि 10 लाख नहीं बेचे, अगर आपने 8 लाख बिके तो आपको 80,000 मिलेगा। तो अगेन 80,000 मिलने के कितने चांसेस हैं। तो अगेन एएस हमें रिकमेंड करता है टू फॉलो द एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्रोच बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द माय प्रूडेंस कांसेप्ट एंड इट विल गिव द ट्रू एंड फेयर व्यू। अगर ज्यादा मिलते हैं बाद में अच्छी बात है, वो हम बाद में रिजल्ट दिखा देंगे, लेकिन अभी हमें प्रूडेंस बेसिस पे लेके अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रिपेयर करनी है। ट्रांजेक्शन प्राइस हमें उसके बेसिस पे निकालना है। सो नाउ अब हम जो ट्रांजेक्शन प्राइस के जो फैक्टर्स थे उसके एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि क्या बात है कि हाउ वी नीड टू ट्रीट इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट। सो पहला हमने एग्जांपल लिया है वेरिएबल कंसीडरेशन का, कि जहाँ पे कंसीडरेशन वेरी डिपेंड करती है अपॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। तो जो मैं पहली बात कर रहा था आपसे एग्जांपल की भी परफॉर्मेंस बोनस है 1 लाख का, मैंने वही एग्जांपल लिया इसमें कि परफॉर्मेंस बोनस कंपनी को मिलेगा 1 लाख रुपीज का, लेकिन जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि 1 लाख मिलने के चांस है 20%, 80,000 मिलने के चांस है 30%, 50,000 मिलने के चांस है 30%, और कुछ भी ना मिले उसके चांस है 20%। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड मेरा ये कहता है कि आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अमाउंट मिलने की, कंसिडरेशन मिलने के एंटिटी के कितने % हमारे पास चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो उसके बेस पे मेरे पास कितना अमाउंट निकला 59,000। तो मैं पहले मोस्ट लाइकली अप्रोच में क्या कर रहा था, व्हाट वी वर डूइंग, वी वर सिंपली रिकॉर्डिंग दिस 1 लाख इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट, बट द एएस सेज कि इंस्टेड ऑफ बुकिंग स्ट्रेट अवे 1 लाख वी नीड टू बुक एंट्री विद 59,000। सो द अकाउंटिंग एंट्री इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट विल बी contract asset account debit 1 lakh, no doubt, to revenue 59,000 जो हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू से निकाला, एंड टू डेफर्ड रेवेन्यू 41,000। डेफर क्यों किया हमने? डेफर इसलिए किया कि जब ये इवेंट सारा हो जाएगा, जब क्योंकि 1 साल के अंदर हमें 10 लाख टायर सेल करने थे, 1 साल के बाद हमें पता लग जाएगा कि कितने हमने सेल करे, तो टिल द टाइम हम उसको डेफर कर दिया। अब लेट्स से मेरा 1 साल जो है वो खत्म हो गया और कंपनी ने अपने जो टारगेट थे वो मीट कर लिए। तो नाउ द अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी कि जो मैंने डेफर रेवेन्यू पहले किया था, अपना रेवेन्यू डेफर किया था, उसको मैं रेवेन्यू बुक कर दूंगा यहाँ पे, डेफर रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू 41,000। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे कैसे हो सकता है कि भाई 41 ना होके क्या पता हम खाली 31,000 ही हमें मिलेगा कंसिडरेशन, 31,000 प्लस 49 लेट्स से 90,000 मिलेगा हमें। तो जो 10,000 की हमने कॉन्ट्रैक्ट एसेट ज्यादा बुक कर रखी थी, इसको हम क्या करते हैं अपनी बुक से रिवर्स कर देंगे। ठीक है, ओके जी, ये थी हमारी वेरिएबल कंसीडरेशन। अब हम बात करते हैं दूसरे फैक्टर की, बहुत अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड वेरी रिलेवेंट फैक्टर इज प्राइस कंसेशन। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू प्राइस कंसेशन। लाइक आई सेड, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रिलेवेंट फैक्टर वी नीड टू कंसीडर एंड वेरी प्रैक्टिकेबल एज वेल, जो हम आए दिन डेली अपनी उसमें भी देखते हैं। क्या है कि लेट्स से मैं एक कंपनी हूँ, मैं एक प्रोडक्ट सेल करती हूँ, उसका प्राइस मैंने रखा है सेल प्राइस ₹100 पर यूनिट। अब मैंने अपने कस्टमर को कहा कि भाई अगर आप 75,000 सॉरी नॉट 1000 लेट्स से सिंपल लगता है उसको, अगर आप 75 यूनिट से ज़्यादा परचेज करते हो मुझसे
तो मैं आपको सेल प्राइस इंस्टेड ऑफ 100 मैं आपको वो 80 का बेचूंगा। ये हम बहुत चीज़ देखते हैं, हम डेली देखते हैं इन चीज़ों को। अब क्वार्टर वन जो था मेरा, लेट्स से कंपनी जो है मेरी वो फॉलो करती है अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर। तो अप्रैल टू जून जो मेरा फर्स्ट क्वार्टर था उसमें हमने कितनी यूनिट बेची उस कस्टमर को 25 यूनिट्स। सेकंड क्वार्टर जो था मेरा जुलाई टू सितंबर उसमें हमने यूनिट्स बेची उसको 20 यूनिट्स। अब जो इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे मैनेजमेंट को लगता था कि ये कस्टमर है, छोटा कस्टमर है, हमसे इतनी यूनिट परचेज नहीं कर पाएगा। लेकिन जो कस्टमर की जो प्रोडक्ट की डिमांड थी वो इंक्रीज हुई और उसने हमसे प्रोडक्ट लेना इंक्रीज कर दिया। और नाउ अब सेकेंड क्वार्टर पे मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करती है कि भाई ईयर एंड आने तक ये जो कस्टमर है ये हमसे 75 यूनिट से ज़्यादा तो परचेज हमसे कर ही लेगा। अब जब ये मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि 75 यूनिट से ज़्यादा परचेज करेगा तो सेल प्राइस क्या होना चाहिए 80। मैंने पहले कितने रुपए का उसको 100 पे, ठीक है। तो अब इसकी हमें क्या करनी पड़ेगी, इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी थ्रू अकाउंटिंग एंट्रीज। देखो हम कैसे करते हैं। तो क्वार्टर वन में क्या मैनेजमेंट को लगता है कि ये 75 से ज़्यादा परचेज करेगा, नहीं लगता। तो सेल प्राइस मेरा क्या होगा 100। तो 25 यूनिट मैंने सेल करी, 100 सेल प्राइस, मेरी एंट्री आ गई 2500, कॉन्ट्रैक्ट एसेट अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू 2500। ठीक है। अब मैं क्वार्टर टू के एंड पे आया, मैं बुक करने बैठा अपनी एंट्री, लेकिन मेरे को ख्याल आया कि यार ये तो 75 से ज़्यादा परचेज करेगा, तो मेरे को हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो ये जो 20 यूनिट्स उसने क्वार्टर टू में सेल करी वो तो 80 पे होंगी मेरी। 20 यूनिट्स इंटू 80 इट कम्स टू 1600। अब जो क्वार्टर वन की एंटिटी है 25 यूनिट जो हमने 100 पे बेची, लेकिन हमें बेचनी थी 80 पे, तो हमने ज़्यादा पे कितने पे बेची 20 रुपये पे। तो जो 20 रुपये की एडजस्टमेंट हमें यहाँ पे करनी है। तो 25 यूनिट्स इंटू 20 कम्स टू 500। तो नेट अमाउंट कितना होगा मेरा 1100। तो मैं क्वार्टर टू में अपनी अकाउंटिंग एंट्री बुक करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट एसेट अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू फॉर रुपीज 1100, नॉट विद 1600, क्योंकि उसमें से मेरी 500 रुपये की क्वार्टर वन की एडजस्टमेंट भी मैंने करी है फॉर आवर प्राइस कंसेशन। आई होप ये एग्जाम्पल बहुत सिंपल है लेकिन बहुत रेलिवेंट है और आपको भी समझ में आए होंगे। अब हम ट्रांजेक्शन प्राइस में मिली यही होता है, लाइक आई सेड, कि ये चीज़ें बहुत क्लियरली हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन होती हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि जो पूरा का पूरा बेस है वो उसी पे ही होता है हमारी अकाउंटिंग एंट्रीज का, जो आगे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। अब नाउ वी विल मूव ऑन टू फोर्थ स्टेप, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, which is allocation of the transaction price for each performance obligation. So friends, now we are on the fourth step, which is allocation of the transaction price. अभी तक हमने अगर क्विक रिवीजन करें, हमने बात करी आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर हमने बात करी आइडेंटिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, फिर हमने बात करी हम ट्रांजेक्शन प्राइस कैसे निकालेंगे। अब चौथा स्टेप है हमारा, और जो ट्रांजेक्शन प्राइस हमने निकाला उसको हमें एलोकेट कैसे करना है। ओके, तो एएस हमें बोलता है, हमारा आईएफआरएस बोलता है कि आइडेंटिफाई द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस फॉर ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ओके, अब एक नई टर्म आती है कि स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस क्या होता है। तो एज इट मीन्स स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, स्टैंड अलोन मतलब अकेले, कि अगर मार्केट में मैं उस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को या उस गुड्स एंड सर्विसेज को अगर मैं सेपरेटली सेल करता तो मुझे कितने पैसे मिलते, मुझे कितनी कंसिडरेशन मिलती। तो वही कहते हैं कि प्राइस एट विच एंटिटी वुड सेल द गुड्स सेपरेटली और सर्विसेज सेपरेटली। तो फोर्थ स्टेप में हमें यही निकालना होता है कि इस तरह सेलिंग प्राइस कैसे निकालें। ये जो चीज़ है निकालना, ये बहुत ही प्रैक्टिकल हमें चैलेंजेस आते हैं इसमें। अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ में बात करूँ, वी फेस चैलेंजेस टू आइडेंटिफाई द एसएसपी इन द शॉर्ट फॉर्म। सो एएस हमें बोलता है इसके लिए कि आपके पास तीन अप्रोच है इसको निकालने की। नंबर वन इज मार्केट अप्रोच, नंबर टू इज सिमिलर अप्रोच, एंड नंबर थ्री इज कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच। मार्केट अप्रोच क्या है कि भाई मार्केट में जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो उसको कितने पे बेच रहे हैं एज अ सिंगल यूनिट और एज अ सिंगल गुड्स एंड सर्विसेज। इन द सेम वे सिमिलर अप्रोच में ये बोलते हैं कि सिमिलर अप्रोच की ऐसी ट्रांजेक्शन अगर आपने पहले कभी करी है, आपने अपनी एंटिटी में पहले कभी ऐसी ट्रांजेक्शन करी है जहाँ पे आपने उस गुड्स और सर्विसेज को सेपरेटली सेल करा है, तो आपने कितने में सेल करा उससे प्लस इंडेक्सेशन लगा लो आज की तारीख तक का, तो वो आपको आ जाएगी सिमिलर अप्रोच के अंदर।
या फिर तीसरा होता है कॉस्ट प्लस मार्जिन, कि भाई आपकी लागत कितनी आई, वो सभी को पता होता है कि मेरे को ये चीज़ बनाने में मेरे को कितना कॉस्टिंग लगा, प्लस उसमें आपका जो मार्जिन है वो। तो प्रैक्टिकली जो कंपनीज हैं वो प्रेफर करती हैं हमारी कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच को, टू आइडेंटिफाई द स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, टू एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस फॉर ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ओके, अब अगेन इसको हम समझ में तो आ गया जिसमें हम ऐसे करते हैं, लेकिन इसको करते कैसे हैं, अगेन मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, वेरी रेलिवेंट एंड वेरी प्रैक्टिकल, उसको समझते हैं। जो मैंने पहले के स्टेप में आपको वो एग्जांपल बताया था कि जहाँ पे हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की बात करी थी कि भाई कैपेबल ऑफ बीइंग कॉन्ट्रैक्ट और डिस्टिंक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो हमने बात करी थी, सॉरी नॉट कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट। तो वो एग्जांपल मैंने लिया, मैंने कहा कि अब इसमें तीनों चीज अलग अलग हो सकती हैं, थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया वो एग्जांपल। मैंने कहा कि इक्विपमेंट अलग है, इंस्टॉलेशन अलग है, मेंटेनेंस अलग है। तो मेरे पास जो सेल्स पर्सन है, मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, लेट्स से मैं अकाउंटेंट हूँ इस कंपनी का, मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, सेल्स पर्सन आया मेरे पास, कहने लगा सर मैं कहा हाँ जी, कि सर मैंने ये 2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है कस्टमर के साथ। मतलब बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने उससे पूछा भाई इसमें हम क्या क्या दे रहे हैं कस्टमर को। उसने कहा सर कुछ नहीं, एक तो हम इक्विपमेंट देंगे उसको, अपनी मशीन सेल करेंगे, साथ में उसकी इंस्टॉलेशन भी करेंगे और अपनी मेंटेनेंस भी उसको देंगे, लेट्स से फॉर 1 ईयर और 2 ईयर एज द केस में भी। मैंने कहा अच्छा, वो तो चला गया, लेकिन मुश्किलें मेरे को बढ़ गई कि मैं 2 लाख रुपए जो है एज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन उसको मान के कर दूं। आवर IFRS सेज नो। व्हाई नो? क्योंकि ये अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है मेरी। जो हमारा सेकंड स्टेप में हमने आइडेंटिफाई करी थी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, जो 2 स्टेप मॉडल थे हमारे की कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये तीनों चीजें मेरी सेटिस्फाई कर रही हैं। तो ये मेरी 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तो 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के लिए मेरे को 3 SSP चाहिए, 3 मेरे को क्या चाहिए, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस चाहिए। तो मैंने देखा, मैंने अपने जो प्रोडक्शन टीम है मैंने उनसे बात करी कि भैया आप एक बात बताओ मेरे को, ये जो इक्विपमेंट है, जो मशीन है, ये अगर मैं मार्केट में सिंगल बेचने जाऊं तो कितने की मैं बेचता हूं उसको। उसने कहा सर 1,85,000, 1,85,000 की। मैंने कहा अच्छा। और मैंने जो इंस्टॉलेशन हम करते हैं इसका हम कितना चार्ज करते हैं, अगर सेपरेटली किसी और कस्टमर पे करते हैं तो उसने कहा सर मोटा मोटा 15,000 चार्ज करते हैं। बड़ी अच्छी बात है। अब मैंने जो मेंटेनेंस दे रहे हैं अपने कस्टमर को, इसको अगर हम खाली किसी को मेंटेनेंस दें तो कितना आएगा, उसने कहा सर 25,000। मैंने कहा ओके। तो मैंने कहा कि अच्छा, वो जो 2 लाख रुपए वो करा है वो बंडल सर्विस में है, लेकिन उसका अगर वैसे प्राइस कितना होता 2,25,000। अच्छा जी। तो अब मैंने क्या किया, मेरे पे लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट कितने का करा है, 2 लाख का करा है, जो मेरा ट्रांजेक्शन प्राइस है वो विच इज 2 लाख रुपीज। तो व्हाट आई डिड, मैंने सिंपली परसेंटेज ऑफ एलोकेशन निकाल दी कि भाई हर किसी का टोटल में कितना परसेंटेज है। तो इक्विपमेंट का आया 82%, इंस्टॉलेशन का आया 6.67% एंड मेंटेनेंस इज 11.3%। कैसे निकाली, सिंपल 1,85,000 डिवाइड बाय 2,25,000 इक्वल टू 82%। तो जो मेरा 2 लाख ट्रांजेक्शन प्राइस था वो मैंने इसी रेशो में मैंने उसको यहाँ पे एलोकेट कर दिया। और इनकी ट्रीटमेंट भी मेरी अलग अलग होगी। क्यों अलग अलग होगी, इक्विपमेंट तो मैं एक साथ बुक कर दूंगा, लेकिन लेट्स से मेरी जो मेंटेनेंस है वो मैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम दूंगा, तो मैं उसको अभी बुक ना करके कुछ उसमें मैं डेफर करूंगा, कुछ में रेवेन्यू बुक करूंगा। ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस एग्जांपल में हम अब एक चीज और आगे समझते हैं। कभी क्या होता है कि जो कस्टमर है हमारा, उसको बहुत रिक्वायरमेंट है हमारी सर्विसेज की। तो व्हाट ही डज, वो कहता है हमसे कि भाई आप ये हमको इतने दिन के अंदर सर्विस प्रोवाइड करा दो। जैसे कई बार हाई डिमांड का सीजन होता है तो हम आपको इतना एडिशनल पैसा और दे देंगे। सो फ्रेंड्स, जो ये हमारा एग्जाम्पल था, इसमें हम कुछ और आगे अपनी बात करते हैं। क्या होता है कि कस्टमर जो है उनका हाई डिमांड सीजन होता है और वो हम एनटीटी को अप्रोच करते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये सर्विस आप हमें विद इन दिस टाइम फ्रेम आप प्रोवाइड करा दीजिए, हम आपको एडिशनल कंसिडरेशन और देंगे। तो मैं इसी एग्जाम्पल में मैं कहता हूँ कि लेट्स से वो कहते हैं कि जो इंस्टॉलेशन है मेरा, अगर आप उसको विद इन 7 डेज कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको 10,000 रुपीज और एडिशनल देंगे कंसिडरेशन। अब इसमें सवाल आता है कि जो 10,000 रुपीज है, इसको भी हम इसी प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एलोकेट कर देते हैं ट्रांजेक्शन प्राइस को। द आंसर इज नो।
IFRS से, और IFRS को छोड़ो, अब प्रैक्टिकली सोचो, लॉजिकली सोचो, जो कस्टमर है जो 10,000 रुपये मेरे को एडिशनल दे रहा है, वो क्या मेरे को इक्विपमेंट और मेंटेनेंस का दे रहा है? नहीं, वो मेरे को खाली किसके देना है? इंस्टॉलेशन के लिए। तो जो 10,000 है जो मेरे को आगे कंसेशन मिलेगी, वो मैं किस पे एलोकेट करूँगा? खाली इंस्टॉलेशन पे ही करूँगा। और ASP हमारा यही बात कहता है कि जो एडिशनल अगर हमें कुछ कंसेशन मिलती है तो इट शुड नॉट बी allocated on the whole transaction price but only on those performance obligation or those goods and services. तो in the same way हमारी जो रिवाइज एलोकेशन क्या होगी? जो इक्विपमेंट का 164,000 था वो 164 ही रहेगा, मेंटेनेंस जो थी हमारी 22,700 की वो 22,700 ही रहेगी, लेकिन जो इंस्टॉलेशन था वो 13,300 पहले था प्लस एडिशनल 10,000, तो यहाँ पे कितना आ गया? 23,300। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल है और बहुत अगेन जो भी एग्जांपल है ये आपको रियल लाइफ में भी, आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको ये मिल जाएंगे। सो अभी तक हमने इसमें क्या बात करी? एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस में हमने कहा कि भाई स्टैंडर्ड और सेलिंग प्राइस हमें निकालना होता है। SSP क्या होता है? मैंने कि नेट प्राइस विच द एंटिटी वुड सेल द गुड्स सेपरेटली। इसकी 3 अप्रोच हमें बताते हैं। मार्केट अप्रोच, यहाँ पे हम अपने कॉम्पिटिटिव जो किस रेट पे बेच रहे हैं वो देखते हैं। फिर आता है सिमिलर अप्रोच, जहाँ पे एंटिटी खुद देखते हैं कितने प्रीवियसली कितने पे उसको सेल करा, वो प्राइस। और तीसरा आता है कॉस्ट प्लस मार्जिन, उसमें हम जो कॉस्ट हमें पता होती है, मार्जिन हमें पता होता है हमारे कितना, तो प्रैक्टिकली ये फॉलो करते हैं। उसके बाद हमने एग्जाम्पल करा। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो है बंडल सर्विसेज का। बंडल सर्विसेज क्या होती है मेरी? वो कहते हैं कि लेट्स से अगर आप हमसे ये टीवी लेके जाते हो, जैसे मैं टीवी बनाता हूँ, मैं LG हूँ, मैं कहता हूँ कि ये टीवी लेके जाते हो और साथ में टीवी की कॉस्ट है 20,000 की, और जो एयरटेल जो डिश टीवी है मेरी एयरटेल, उसका जो प्राइस है वो है लेट्स से 3,000 का। तो ये आपको 23,000 की पड़ेगी अगर आप अलग अलग परचेज करते हो। लेकिन कंपनी कहती है, LG का और एयरटेल का टाई अप है साथ में, वो कहते हैं कि भाई अगर आप ये चीज़ें हमसे एक साथ लोगे एज अ बंडल सर्विस, हम आपको इंस्टेड ऑफ 23,000 हम आपको 21,000 चार्ज करेंगे। तो उस केस में हमें 20,000 और 3,000 ही लेके चलना, हमें वहाँ पे हमें वो सिंगल बंडल सर्विस लेके हम उसको 21,000 से हम अपनी अकाउंटिंग एंट्री बुक करेंगे। तो फ्रेंड्स, नाउ वी मूव ऑन टू द लास्ट स्टेप, द 5th स्टेप, व्हिच इज रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू। सो जो हमारे प्रीवियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे वो हमारे यहाँ से स्टार्ट होते थे, वो हमें यही की बात बताते थे कि भाई रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हमें कैसे करना है। तो आप देख रहे हो कि जो ये हमारा IFRS है काफ़ी वास्ट है इन टर्म्स ऑफ इट्स स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी। तो द रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू सेज कि रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू व्हेन और एज इज द गुड्स एंड सर्विसेज आर ट्रांसफर्ड टू द कस्टमर एंड entity expect to receive consideration in exchange of those transfer goods and services। तो यहाँ पे 2-3 बातें हैं जो मैं आपके साथ करना चाहूँगा। नंबर फर्स्ट इज रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन एंड और एज इज। व्हेन कब? व्हेन द रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज एट अ टाइम। जैसे मैंने कुछ गुड्स आपको बेचे, मैंने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया। एंड एज इज यूज्ड वेयर रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो हमारे प्रीवियस एग्जांपल में हमने बात करी थी मेंटेनेंस सर्विसेज की, कि लेट्स से मैं 1 साल की दूंगा या 2 साल के लिए मैं दूंगा, तो मैं उसको जो रेवेन्यू है वो 1 साल बुक नहीं करूंगा, उसका मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बुक करूंगा। ओके जी, भाई मैं कब करूंगा? व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर ट्रांसफर्ड टू कस्टमर। ट्रांसफर कब आता है? तो क्या ट्रांसफर का मतलब एक्चुअल ट्रांसफर जरूरी है कि भाई मैंने अपने प्रीमाइसेस से हटा के ले जाके कस्टमर के प्रीमाइसेस पे रख दिया, क्या ये जरूरी है? नहीं। एक्चुअल फिजिकल ट्रांसफर इज नॉट रेलिवेंट। व्हाट इज रेलिवेंट इज द लीगल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। कि जो ओनरशिप है, जो रिस्क एंड रिवार्ड है और जो एक्सेप्टेंस है वो किसके पास है? वो कस्टमर के पास है, राइट? सो फिजिकल ट्रांसफर इज नॉट कंपल्सरी, एक्चुअल ट्रांसफर इज नॉट कंपल्सरी, व्हाट इज कंपल्सरी इज द लीगल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तो वही बात हमारा IFRS हमसे यहाँ पे करता है। और दूसरी चीज इसमें क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज आर ट्रांसफर टू कस्टमर एंड, और नहीं यहाँ पे एंड एंटिटी एक्सपेक्ट टू रिसीव द कंसिडरेशन, और साथ में एंटिटी को लगे कि उस कस्टमर से पैसे हमें मिल जाएंगे। अगेन द आवर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कम्स इनटू प्ले। लेट्स से
मैंने एक एंटिटी को जो कि कोस्टल एरिया में थी, मैंने उसको कुछ गुड्स ट्रांसफ़र करी, ठीक है, मेरी कोई मशीनरी उसको ट्रांसफ़र करी, लेकिन क्या हुआ, सुनामी आ गई वहाँ पे और जो उसकी फैक्ट्री थी वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई ड्यू टू सुनामी। एंड टू एड ऑन दैट उसके जो गोडाउन था उसमें फायर भी हो गई, तो जो वो कस्टमर था हमारा वो पूरा इंसॉल्वेंट हो गया, वो पूरा क्या हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया। सारे जो उसने इंश्योरेंस करा रखे थे सब चीज एग्जॉस्ट होने के बाद भी ही वॉज नॉट एबल टू पे द एंटिटीज मनी। तो क्या उसमें भी हमने रिकॉग्नाइज करना चाहिए रेवेन्यू? भाई हमने तो चारों स्टेप हमने फॉलो करे, ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करी, हमने कॉन्ट्रैक्ट भी देख लिया, ट्रांजेक्शन प्राइस भी निकाला, एलोकेशन भी कर दी, हमने कुछ ट्रांसफर भी कर दिए, लीगल ओनरशिप भी आ गई, हम तो नहीं, रिकॉग्निशन हमें नहीं करना क्योंकि हमें पता है कि हमें कंसिडरेशन मिलने वाली ही नहीं है। तो ये भी बहुत जरूरी है कि कब एंटिटी एक्सपेक्ट टू रिसीव द कंसिडरेशन, राइट? So friends, these were the 5-step model which we study in our IFRS 15. I hope जहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बहुत सिंपल स्टेप्स में मैंने आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू गाइस। फर्स्ट स्टेप वाज आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 2 was identification of performance obligation, number 3 was our identification of transaction price, number 4 was allocation of transaction price into the performance obligation, and number 5 is our recognition of revenue. So friends, अब जो मेन IFRS है वो हमने देख लिया है, अब उसके जो अदर टॉपिक्स हैं छोटे छोटे बार उसको भी हम गो थ्रू कर लेते हैं क्विकली। सो बात करते हैं यहाँ पे डिस्क्लोजर्स की कि IFRS जो एंटिटी फॉलो करती है उसको अपने नोट्स टू अकाउंट्स में क्या क्या डिस्क्लोज करना चाहिए। तो सबसे पहले दे नीड टू डिस्क्लोज कॉन्ट्रैक्ट एसेट एंड कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट एसेट एंड कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी आर नथिंग बट अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट पेबल। अब द क्वेश्चन अराइज कि जब मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ तो मेरी लायबिलिटी किस केस में अराइज हो सकती है? तो वो अराइज होती है उस केस में जब हमें कस्टमर से एडवांस पेमेंट मिलती है। तो एडवांस पेमेंट जब हमें मिलेगी तो अभी मैंने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं करनी है, तो वो मेरी एज अ लायबिलिटी होगी मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो इसलिए आई विल ट्रीट इट एज माई कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। उसके अकाउंटिंग मेरी बुक्स में क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। Then we need to disclose the separate performance obligation. कौन कौन सी हमारी separate performance obligation है for our material contract with the customers. Then we need to disclose methods, inputs and assumption used. Assumption हमारी जहाँ पे मैनेजमेंट assume करते कि इतनी probability है, इतने chances हैं, या फिर past trend को देख के historically इतने कस्टमर हमसे रिन्यू करेंगे, उसे जो हमने देखा था कॉल ऑप्शन जो था हमारा ऑप्शन जिन्होंने एक्सरसाइज किया था, वो सारी बातें हैं। एंड फिर जो कुछ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है उसके बारे में बात है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्क्लोजर पार्ट। नाउ कम्स द स्कोप पार्ट। सो व्हाट इज इन द एम्बिट ऑफ दिस IFRS एंड व्हाट इज नॉट इन द स्कोप। सो व्हाट इज इंक्लूडेड इज ऑब्वियसली द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, एंड वन मोर ट्रांजेक्शन इज इंक्लूडेड व्हिच इज सेल ऑफ नॉन फाइनेंशियल एसेट which happened not in the ordinary course of business. That means कि कंपनी का वो ऑब्जेक्टिव नहीं था एसेट को बेचना, लेकिन कंपनी ने बेच दी। जैसे एग्जांपल है मेरी कि मेरी जो पुराने फिक्स एसेट्स थे, राइट, वो डेप्रिशिएट हो चुके थे। अब मैं अपने उसमें नई मशीनरी लेके आ रहा हूँ अपने प्लांट में, तो जो मेरी प्लांट जो पुराना प्लांट एंड मशीनरी है, जो मेरी पुरानी फिक्स एसेट है, उसको मैं सेल कर रहा हूँ, तो वो भी मेरा इस स्कोप के अंदर आएगा, इस IFRS के स्कोप में आएगा। और क्या एक्सक्लूड नहीं है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और रेलिवेंट भी है कि कौन कौन सी कॉन्ट्रैक्ट्स या कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हमारी स्कोप में नहीं है। तो लेट्स से फर्स्ट वन इज लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट आइडियली मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर ऑब्लिगेशन भी होती है कि भाई जो लेसर है वो लेसी को जो भी एग्री टर्म्स पे सर्विसेज देगा, या अगर मैं बात करता हूँ रेंट की तो उसको फ्लैट देगा और रेंट मिलेगा, कंसिडरेशन भी होती है उसमें और टाइम फ्रेम भी होता है। लेकिन उसके लिए हमारे पास अलग से IFRS है, विच इज IFRS 16, तो इसलिए वो IFRS 15 के स्कोप से बाहर हो गया। देन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट मेरे यहाँ पे भी होता है, रेवेन्यू की बात मैं यहाँ पे भी करता हूँ, लेकिन इसके लिए अलग से IASB ने IFRS 17 इशू करा हुआ है, तो इसलिए ये मेरा IFRS 15 के स्कोप से आउट हो गया।
Then comes financial instrument. Financial instrument जहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटीज होती हैं, अगेन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वहाँ पे कंसिडरेशन होती है, इनकम की बात होती है, लेकिन अगेन उसके लिए हमारे पास IFRS 9 है, सेपरेट IFRS है, तो इसलिए IFRS 15 से बाहर हो गया. एंड इन द सेम वे कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन जो भी विच इज नॉर्मली पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो ये सारे हमारे IFRS 15 के एलिमेंट से बाहर हो जाते हैं. तो अगर मैं नर्सरी में बात करूँ तो वो सभी कॉन्ट्रैक्ट जिनके लिए IFRS में सेपरेट गाइडेंस इशू करी हुई है इन द फॉर्म ऑफ गाइडेंस नोट और इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो दोज कॉन्ट्रैक्ट्स are not in the scope of IFRS 15. So friends, this was all about IFRS 15. I hope you understood the core concept of IFRS 15. Very simple but very relevant for our practical knowledge as well. And in case of any doubts you have, you can definitely drop me an email. My email is in the description box and I will try to answer your doubts as soon as possible. So guys, thank you very much for watching the video. Bye bye.